start exercise number 6.4. In the first question, we have to compare the given two fractions. For comparison, we have to first find the LCM of the denominators. So let's find out the LCM. So the LCM is 7 to the 14, 3 is the 42. Now divide the denominator of the first fraction with the LCM. It is 3 times, and multiply the numerator with 3. Divide 21 by 42, it's 2 times, so multiply 8 by 2. 13 3 is 39 upon 42, and 8 to the 16 upon 42. अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो चुका है. अब हम क्लियरली इसका इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं. विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर. एज यू कैन सी 16 इज स्मॉलर एंड 39 इज ग्रेटर. सो वी पुट दिस साइन एंड अगेन राइट द क्वेश्चन 13 upon 4 and 8 upon 21. So put this sign 13 upon 14. This fraction is greater, and you can do the remaining parts in such a way. Now question number second. Question number is saying that question second. A boy read 2 upon 3 of a book on the first day. Boy read a book on first day. Two upon 3. A boy read 2 upon 3 part of a book on first day, and on second day he reads 1 upon 5 पार्ट. ठीक है. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक बॉय था, उसने एक बुक में से उसका इतना पार्ट 2 upon 3 जो पार्ट था वो फर्स्ट डे को रीड कर लिया, और जो सेकंड डे उसने इतना पार्ट बुक का रीड किया. तो कौन से दिन, विच डे ही रीड्स द लार्जर पार्ट ऑफ द बुक, मेजर पार्ट ऑफ द बुक. सो for finding the major part of the book, we have to compare these two fractions, and for comparison we again use the same method. First find out the LCM of 5 and 3. It is 5 3 is 15. LCM is 15. Now 2 upon 3 and 1 upon 5. LCM is 15. So divide 3 by 15, it's 5 times. So multiply 2 5 times, and 5 will be divided 3 times by 15. So multiply 1 by 3. It is 10 upon 15 and 3 upon 15. So you can see this part is greater. So 2 upon 3 is greater, which is on the first day. He reads 2 upon 3 part of the book on first day. So the answer is boy reads major part of the book on first day. मीन्स उसने जो है फर्स्ट डे ज्यादा रीड किया बुक का पार्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर आर 3 persons A, B and C, and they walk some distance. A walked this kilometer and B this and C this kilometer. We have to arrange these distances in descending order. So for doing this question, let's convert these fractions into improper fraction. 5 into 5 plus 3, 8 upon 5. A is equal to 8 upon 5,
and B is equal to 7 to the 14 plus 1 15 upon 7 and C is equal to 3 to the 6 plus 2 8 8 upon 3 8 upon 3. These all are in kilometer. Now for arranging them in descending order, we have to first find out the LCM of denominators 5, 7 and 3. So let's find out the LCM 5, 7 and 3. Five 7 are 35 and 35 3s are 105. So LCM is 105. Now 105 divide 5 by 105, it is 2 and 1 21. So multiply 8 by 21. Divide 7 by 105. 1 and 5, it is 15. So divide 15 by 15. Multiply 15 by 15 and divide 3 by 105. 3 3 is a 9 and 3 5 is 15. So it is 35. Multiply 8 by 35. So 21 8s are, it is equal to 168 upon 105 and 15 15s are 225 upon 105. 35 8s are 280. It is 280 upon 105. ठीक है बेटा, तो हमने इसको अब एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम कर लिए। अब आप देख सकते हैं इनको डेसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इनमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है 280, और 280 किसके लिए था इनमें से सी के लिए, सी के लिए तो ये था 15/7, दिस इज ग्रेटर एंड इससे स्मॉलर देखेंगे तो 225 है और 225 था सी के लिए, सॉरी ये सी के लिए था, सी है 8/3। इसके बाद है बी वाला 15/7 एंड लास्ट में है सी ए विच इज 8/5। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं, ये सबसे ग्रेटर, इससे स्मॉलर और ये सबसे स्मॉलर। तो ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट। नाउ नेक्स्ट इसकी तरह ही आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, आपको ये खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्यू टॉफीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रमेश, सुरेश एंड प्रकाश। देयर आर 3 persons, रमेश, सुरेश एंड प्रकाश। Few trophies were distributed among them. Ramesh got 3/8 and Suresh got 1/2 and Prakash got 1/8. The question is asking who got the maximum trophies. किसको सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज मिली? तो सेम मेथड से जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे और फिर सारा पूरा वही मेथड लगा के हम देख लेंगे कि ग्रेटर नंबर कौन सा आ रहा है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग देम, और जिसका ग्रेटर आएगा उसी से हम पता लगा लेंगे कि सबसे ज़्यादा ट्रॉफी हु गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉफीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि हमने अभी किया था बाकी के क्वेश्चन में वैसे ही करना। इन क्वेश्चन 5 वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रॉम दीज फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे।
और उसके बाद डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके सेम प्रोसेस में जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं इस एक्सरसाइज के, और हम जो है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्वेश्चन 5 में हमको स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन 6 में ग्रेटेस्ट, इनमें से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा वो फाइंड आउट करना है। मेथड सेम रहेगा, सारे स्टेप सेम रहेंगे, तो आप उसको होमवर्क में पूरी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज हुए। मैंने ये भी आपको एक क्वेश्चन करके भी दिखाया था, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो ABC पर्सन्स थे उसमें डिसेंडिंग में अरेंज करके भी दिखाया था, और सेम वे में आप डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंज कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.5। सो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5। 6.5 में देखिए आपको बेटा क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द सम फाइंड करना है। अब अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें, 9/5 and 2/5, डिनोमिनेटर्स आर ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस आर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमको एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर्स को प्लस कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, 9 + 2/5, 9 + 2 is equal to 5, 11, and the answer is 11/5। क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर सेम थी इसलिए हमको सिर्फ डिनोमिनेटर को ही प्लस करना था, तो हमने कर दिया। सेकंड क्वेश्चन, इसके बाकी के पार्ट्स आप इसी तरीके से कर लें। सेकंड क्वेश्चन में हमको सब्ट्रैक्शन करना है। डिनोमिनेटर्स आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी सेम है, 13/15 एंड 7/15। तो ये भी डिनोमिनेटर सेम है, तो उनको भी हम डायरेक्टली कर देंगे। 13 - 7/15 is equal to 13 - 7 is 6, 6/15। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोएस्ट टर्म्स में और कर सकते हैं। बोथ द नंबर्स आर डिवाइडिंग बाय 3, सो लोएस्ट टर्म्स में इनको कन्वर्ट कर लीजिए। 3 × 2 = 6 and 3 × 5 = 15, so this will be the answer। इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स आप इसी तरीके से कर सकते हैं। Now we will move to the next question। Question number 4, subtract the sum of from this। इन दोनों फ्रैक्शंस का सम करके प्लस करके हमको इस फ्रैक्शन में से उसको माइनस करना है। तो देखिए करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 × 10 + 3 13/5 प्लस हमको इन दोनों को प्लस करना है। 5 × 5 + 2 7/5। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है। 13 + 7 = 20, 20/5। ठीक है, अब इसको भी कर लेते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 × 7 = 35 + 3 38/5। 38/5 में से हमको क्या करना है, माइनस करना है इस वाले को 20/5। यहाँ पर भी आप देखें तो डिनोमिनेटर सेम ही है, डायरेक्टली माइनस कर देंगे। 38 - 20 = 18/5। एंड अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 18/5, 5 × 3 = 15, रिमाइंडर इज 3, 3 whole 3/5, 3 whole 3/5। So that will be your answer। Now question 5। ना बेटा वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, करना आपको खुद ही है। ऐड 2 whole 3/8 टू द डिफरेंस ऑफ, इन दोनों का पहले माइनस करना है। डिफरेंस मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उस आंसर में हमको 2 whole 3/8 को प्लस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिफरेंस ऑफ बोथ दिस फ्रैक्शंस एंड ऐड 2 whole 3/8 टू द आंसर। ठीक है, इसको आप लोग कर लेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, सुनील डिड 3/7 ऑफ हिज वर्क ऑन सैटरडे एंड 2/7 ऑन संडे। एक बॉय है सुनील, वो अपना होमवर्क जो है, होमवर्क डन ऑन सैटरडे। सैटरडे को वो अपने होमवर्क का कितना पार्ट कर लेता है, वो कर लेता है 3/7 पार्ट। ठीक है, एंड 2/7 ऑन संडे। होमवर्क डन ऑन संडे।
संडे को वो कितना पार्ट कर लेता है 2/7, ठीक है। सैटरडे को उसने अपने होमवर्क का इतना पार्ट कर लिया और संडे को ये पार्ट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं हाउ मच ऑफ द होमवर्क डिड ही डू ओवर द वीकेंड, वीकेंड मतलब सैटरडे एंड संडे। हाउ मच ऑफ होमवर्क ही हैज डन ऑन बोथ दीज डेज। क्या करेंगे, दोनों दिन का निकालना है तो सैटरडे एंड संडे का प्लस करेंगे, ठीक है। 3/7 प्लस 2/7। यहाँ पर भी आप देखें तो डिनोमिनेटर सेम ही है तो हम एलसीएम नहीं निकालना है, डायरेक्टली प्लस कर देना। 3 + 2 = 5 एंड द आंसर इज 5/7। उसने दोनों दिनों में इतना वर्क किया, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, नरेश, देखिए 3 पर्सन है, नरेश, राम एंड सुनील। वो कुछ अमाउंट में शुगर लेकर आए, नरेश इतना लाया, राम इतना और सुनील ये। तो हमको इनका टोटल वेट बताना है, तो टोटल में आपको पता है प्लस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 × 2 = 6 + 2 8/3। नरेश 8/3 kg, ओके। एंड राम 3 × 3 = 9 + 1 10/3 kg। एंड सुनील 4/3 kg। हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। 8 + 8/3 प्लस 10/3 plus 4/3. As you can see, the denominators are again same, so we can directly add these terms. 8 + 10 + 4/3. 8 + 10 18 + 4 22. 22/3. Now convert this into mixed fraction. 3 × 7 = 21, and remainder is 1, so 7 whole 1/3, 7 whole 1/3 kg. Now this exercise is complete and we will move on to the next exercise.